Very good evening to one and all. I am Dr. Prabhakar Swami, IQVC coordinator of Mahatma Phule Mahavidyalaya, Kingaon. I heartily welcome to all the dear participants in the 25 days national seminar series on New Education, National Education Policy 2020, which has been organized by Internal Quality Assurance Cell of Mahatma Phule Mahavidyalaya, Kingaon, in collaboration with NEP cell of Mahatma Phule Mahavidyalaya, Kingaon. I heartily welcome the chairperson of today's meeting, Dr. B.R. Bodke sir, Honorable Principal of my college, and the chief guest for today's seminar, our college vice principal, Dr. Vittal Ji Chavan sir. I heartily welcome to both of you. Please have a chair. Also, I would like to welcome today's honorable resource person, Dr. Rajesh Kumar Agrawal sir. I would like to introduce him very briefly to the audience. Dr. Rajesh Kumar Agarwal is presently working as assistant professor and head of department of commerce at VITS College, Satna, Madhya Pradesh from 2009. Sir is teaching in higher secondary school English medium as a accountant, commerce, computer lecture and system maintenance in charge from 1999 to 2007, and also work as a computer operator and examination controller. Sir is the state representative of Rajiv Gandhi Computers Saksharata Mission from 2005 to 2007. Sir has having some role and responsibilities at VITS. Sir is working as an examination superintendent AS APSU Reva from December 2012 to till date. Sir is the assistant examination superintendent OYAPAM PSC and AIMS at New Delhi. Sir is working as nodal officer of EIMS College from MPHE and AICG. Sir is also working as a nodal officer of WITS College of Education for MPHE and NCT and AICG. Sir has pursued his PhD degree in 2019 from APSU Reva 2019. Sir is also having linguistic skills and Hindi language skills. Sir has published near about 2 books on e-books on public speaking. Sir is having so much experience and he has published so many research journals in reputed journals. And also, sir has published some research papers in national and as well as international conferences and seminars. So not taking a much time between you and sir, because today's topic is my favorite topic, public speaking skills. Really, we are very much thankful to Rajesh Kumar Agrawal sir for accepting our invitation as a resource person and giving us a time, because sir is totally fully busy person. Sir is having so much sessions in a day-to-day life, because he has given lectures near about more than 100 lectures he has given on speaking skills. So not taking much time between you and him, I heartily welcome Dr. Rajesh Kumar Agrawal sir. Welcome sir, and welcome sir. थैंक यू वेरी मच सर। बहुत लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन आपने दे दिया, इतना नया इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं थी, बट इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट। अभी तक जो भी सीरीज सेमिनार की चल रही है, आई डोंट नो, क्योंकि मैंने कोई भी अटेंड नहीं किया एग्जैक्टली, आई डोंट नो कि आप लोग कैसे उसको अटेंड कर रहे हैं, बट इस सेमिनार के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इफ पॉसिबल तो इसको एज अ सेमिनार मत लीजिए, एज अ मतलब कह सकते हैं कैप्सूल ट्रेनिंग आप ले सकते हैं। तो अगर आप कैप्सूल ट्रेनिंग की तरह इसको अगर आप लेना चाहते हैं, और यस अगर इस स्किल का रियल में एडवांटेज आप लेना चाह रहे हो, तो अगर आप ऑन कैमरा आओगे तो मेरे को लगेगा कि मैं हाँ रियल में कुछ बता रहा हूँ, अदरवाइज लगेगा कि मैं विविध भारती में या संस्कार भारती में मैं बात कर रहा हूँ और केवल लोग रेडियो पे सुन रहे हैं।
ना, तो अगर इफ पॉसिबल यू बिकम ऑन कैमरा, इट इज टोटली मतलब 100% बेनिफिशियल फॉर यू, बिकॉज जो पब्लिक स्पीकिंग स्किल है उसको आप इस तरह से ले सकते हो कि बिकॉज हम दिन में सबसे ज्यादा जो काम करते हैं वो बोलने का करते हैं। और मैं अपनी अगर बात करूं तो ये स्किल मैंने कब सीखना चालू किया, उसके लिए मैं थोड़ा सा 2 मिनट में अपनी एक स्टोरी बताता हूँ आपको कि 2019 की बात है कि मैंने एक बार स्टेज में प्रोग्राम किया अपने कॉलेज में, और किसी व्यक्ति ने मुझे टोक दिया कि यार तुम कभी स्टेज पे बोल नहीं पाओगे, यू आर नॉट कैपेबल टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस, तुम्हारे कंटेंट ऑर्गेनाइज नहीं होते हैं, तुम्हारा बोलने का लहजा सही नहीं है। सो मेनी ऑब्जेक्शंस उन्होंने लगाए। बात आई गई हो गई, बात दिल को लगी, फिर लॉकडाउन आ गया। देन आई लर्न दिस स्किल, माय मेंटोर मिस्टर प्रवीण बडालकर, उनका मैंने प्रोग्राम लिया, 1.5 साल तक उस पर काम किया। उसके बाद मैंने उसी प्रोग्राम पे लगभग 10 से 12 किताबें। देन आई रिटन अ बुक। पब्लिक स्पीकिंग पे बहुत सारी किताबें हैं, बट उस पे प्रैक्टिस टास्क को लेकर कोई बुक नहीं है। देन आई रिटन अ बुक दैट इज नेम इज पब्लिक स्पीकिंग वर्कबुक, और उस बुक के कुछ अंश फ्रॉम ए टू जेड मैं आपको समराइज्ड वे में यहाँ पे डिलीवर करूंगा। दिस इज अ पार्ट ऑफ अवर न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट में एक छोटा सा यूनिट है, दैट इज स्पीकिंग स्किल। सर एक्सक्यूज मी सर, हेलो, जस्ट आपका 1 सेकंड लूंगा सर। My college honorable principal Dr. B.R. Bodke sir has recently joined this session. I heartily welcome honorable Dr. B.R. Bodke sir, the principal of my college, and he is also working as a secretary of the institution. Also, he is working as a academic council member of Swami Ramanatha Marathoda University Nanded, and also sir is working as a BOS member of Hindi subject. I heartily welcome our honorable principal sir, Dr. B.R. Bodke sir. Welcome, sir. Yes, sir. You can proceed now. राजेश सर प्लीज बोलिए। ओके, नो इशू सर। तो अब मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, रैपिड फायर की तरह चलूंगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन होता है प्लीज नोट डाउन इट, एंड ऑफ द सेशन वी रिजॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। बट अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग इफ पॉसिबल प्लीज ऑन कैमरा, ताकि हम फेस टू फेस प्रॉपर बात कर सकें। I think my screen is visible. Yes, sir. Yes, sir, visible, sir. So this is a blueprint of public speaking, जो हमारे NEP में एक कंटेंट है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, उसका एक यूनिट है इफेक्टिव स्पीकिंग स्किल। तो उस पर मैं इस कंटेंट को डिलीवर करता हूँ। तो वी डिस्कस इन दिस पॉइंट, व्हाट डू यू मीन बाय ब्लूप्रिंट, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ब्लूप्रिंट, एंड हाउ टू वी अचीव दीज ऑब्जेक्टिव्स। तो मैं इस पे अगर छोटी सी बात करूं तो जस्ट लाइक अगर आप लोग स्विमिंग सीख ले हो, एक बार आप गाना सीख लो, अगर ऐसा आप कर लेते हो एक बार, तो डेफिनेटली आप कोई भी गाना गा सकते हो, किसी भी जगह पे तैर सकते हो। तो सेम वी डिजाइन अ ब्लूप्रिंट कि हाउ टू डिलीवर अवर टॉक इफेक्टिवली। तो अब व्हाई आई एम द राइट पर्सन टू डिलीवर, सर ये बार बार एडमिट के लिए आ रहा है, तो आप उसको ओपन कर दें या तो। Why I am the right person to deliver that talk? Because मैं लगभग 4 साल से इस फील्ड पे काम कर रहा हूँ, 2 बुक्स लिख चुका हूँ, और लगभग 2000 बच्चों को अपने कॉलेज में और अपने एरिया में मैं ट्रेंड कर चुका हूँ। Currently I am training, already delivering our I think 18th workshop, 21-day workshop. This is my book जो Amazon पे है। और what I believe that कि हम कुछ भी सीखें या हम कुछ भी करें, हम बीच में होते हैं, क्योंकि हमसे कुछ ज्यादा जानने वाले लोग भी होते हैं और हमसे कुछ कम जानने वाले लोग भी होते हैं। तो ज्यादा जानने वालों से हम सीख सकते हैं और कम जानने वालों को बता सकते हैं। तो आई डोंट नो एग्जैक्टली कि मैं अभी कैसे अपनी टॉक को डिलीवर करूंगा, बिकॉज ऑल आर सीनियर देन मी, बट जस्ट आई एम ट्राइंग टू डिलीवर माई बेस्ट। हम बात करेंगे अगर ब्लूप्रिंट की, तो हम 4 स्टेप्स में बात करेंगे। फर्स्ट वी डिसाइड द टॉपिक ऑफ प्रेजेंटेशन। अगर मैं वही बात कर रहा हूँ, स्विमिंग सीखने जा रहे हैं, तो स्टेप बाय स्टेप एक बार स्विमिंग सीख लेंगे तो कहीं पे भी स्विम कर पाएंगे। इफ वी वांट टू डिलीवर द प्रेजेंटेशन और डिलीवर द टॉक, तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमारा टॉपिक क्या है। देन डे बाय डे हमारा प्रेजेंटेशन कैसे ग्रो करेगा, उसके बारे में अपन बात करेंगे।
एंड कुछ असाइनमेंट्स मैं आपको बताऊंगा, वो आप बाद में कर सकते हो। एंड पूरे 21 डे का ये प्रोग्राम है जिसको मैं आपको शॉर्ट में आज डिलीवर कर रहा हूँ। तो अपन बात करते हैं, सबसे पहले तो बात आती है डिसीजन की। इफ यू डिसाइड कि आपको आप 24 घंटे में आप 12 घंटे अगर सिर्फ बातें करते हो और आप इफेक्टिव बात करना चाहते हो, तो वी नीड टू डिसाइड कि यस आई डिलीवर माय टॉक इफेक्टिवली। तो उसके लिए 2 टूल हैं जिनको मैं अक्सर पहले सजेस्ट कर देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। गूगल में अवेलेबल हो जाएगा स्पीकअप ऐप, जिसके बारे में मैं थोड़ा सा डेमो आपको दूंगा आगे। और एक फेसबुक ग्रुप है मेरा, जहां पर लगभग 1200 लोग रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं अबाउट दिस स्किल। व्हाट इज द प्रोसेस? तो फाइंडिंग द प्रेजेंटेशन का टॉपिक हम फाइंड करेंगे, प्रेजेंटेशन को बिल्ड करते हैं कैसे करते हैं, एंड डिलीवर कैसे करते हैं। ये 3 फेज में चलेगा पूरा ये वर्कशॉप। अब मैं अगर बात करूं कि प्रेजेंटेशन का टॉपिक या फाउंडेशन कैसे बनता है, तो फाउंडेशन में 3 चीजें होती हैं। किस चीज पे प्रेजेंटेशन है, हमारी ऑडियंस कौन सी है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारी आज का, जैसे मैं ये आपसे बात कर रहा हूँ, बिकॉज कैमरे ऑन नहीं है तो मैं एग्जैक्टली मॉनिटर नहीं कर पाऊंगा कि आपको कैसा फील हो रहा है ना। अगर सर अगर आप ट्रैवलिंग पे हो तो प्लीज कैमरा ऑफ कर दीजिएगा, अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो नो इशू। तो व्हाट इज द माय मैसेज करेंटली, आज मैं अगर आपके साथ बात कर रहा हूं तो मेरा क्या ऑब्जेक्टिव, माय ऑब्जेक्टिव इज टू गिव यू अ ब्लूप्रिंट। पूरा कंप्लीट प्रैक्टिस तो नहीं हो पाएगा, बट एक ब्लूप्रिंट आपको मिल जाएगा। तो नाउ वी मूव, आज का हमने प्रेजेंटेशन का जो टॉपिक लिया है वो है हाउ टू स्ट्रेंथन अवर रिलेशनशिप। हमारे रिलेशनशिप को कैसे हम कैलकुलेट करें कि वो कैसा चल रहा है, इस पे अगर अपन प्रेजेंटेशन बनाते हैं। तो पहली बात तो ये हो गई, आप अपना टॉपिक भी कुछ सजेस्ट कर सकते हो, ये मेरा टॉपिक है। अब इस टॉपिक को बनाने के बाद अब इस पे हमको प्रेजेंटेशन बनाना है, या इस पे हमको अपनी पूरी टॉक को डिलीवर करना है। तो हम रिलेशनशिप पे जब बात करते हैं तो रिलेशनशिप का मतलब ये नहीं होता कि केवल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशनशिप, फ्रेंड्स का रिलेशनशिप भी हो सकता है, मदर चाइल्ड का रिलेशनशिप भी हो सकता है, सन और फादर का रिलेशनशिप भी हो सकता है, ब्रदर सिस्टर का रिलेशनशिप भी हो सकता है। इस क्राइटेरिया को लेकर हम प्रेजेंटेशन बिल्डअप करना चालू। जब प्रेजेंटेशन का टॉपिक डिसाइड हो गया, अब इम्पोर्टेंट नाही मला 25 दिवस. ओके, अब जब प्रेजेंटेशन का टॉपिक डिसाइड हो जाता है, देन वी डिसाइड कि हम जहां ये टॉक डिलीवर करने जा रहे हैं, हाउ टू स्ट्रेंथन अवर रिलेशनशिप, हमें वहां टाइम कितना मिल रहा है। 10 मिनट बोलने को मिल रहा है, आधा घंटा मिल रहा है, 1 घंटे मिल रहा है, 3 घंटे मिल रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब उसके बाद हम जब टाइमिंग डिसाइड हो गया, देन वी डिसाइड द ऑडियंस। हम स्पीकर से पहले बात कर लेंगे, वो ऑर्गेनाइजर से पहले बात कर लेंगे कि वहां पे कैसे लोग होंगे। अब ये अकॉर्डिंग टू द एल्बर्ट मेहराबियन, इज अ लेजेंड ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, उन्होंने बताया कि ऑडियंस बेसिकली 3 तरीके की होगी। ऐसी ऑडियंस जो आपके पैरेलल है, यानी एज पर क्वालिफिकेशन, क्रेडिबिलिटी, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग आपके बराबर की होगी, या तो आपसे बिलो होगी, या तो आपसे अबव होगी, या हो सकता है तीनों की मिक्सिंग भी हो। बट इंपॉर्टेंट है कि आप ये फिल्टर कर लें कि ऑडियंस कौन है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग कंटेंट चेंज हो जाएगा। अब तीनों प्रकार की ऑडियंस में 4 वैरायटी होती है। जब आप टॉक देने जाएंगे, अब आप फील करेंगे, बिकॉज ऑल आर द टीचर्स, तो जब क्लास में हम बात करते हैं ना, तो दे आर बिलो देन अस, बट उसमें भी 4 वैरायटीज हैं। लेट्स सी, एल्बर्ट मेहराबियन के अकॉर्डिंग ये 4 पार्ट में डिवाइडेड है, ए बी सी डी। ए इज अ एंजल ऑडियंस, वो ऑडियंस जो क्लास में बैठी तो रहती है या हॉल में बैठी तो है, दे आर नॉट डिस्टर्बिंग यू, बट एक्चुअली आप गेस नहीं कर सकते कि दे आर लिसनिंग यू और नॉट लिसनिंग यू, बट दे आर नॉट डिस्टर्बिंग यू। वो आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहे, आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहे। सेकंड इंपॉर्टेंट कौन सी ऑडियंस है? बिजी। एक्चुअल में इनको किसी प्रेशर की वजह से वहां बैठा दिया गया, ये मजबूरी में वहां बैठे हैं, इनके घर में कुछ और प्रॉब्लम चल रहा है, रिलेशनशिप में कोई और प्रॉब्लम चल रहा है, फैमिली में कुछ और प्रॉब्लम चल रहा है, फ्रेंडशिप में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, बट मजबूरी है तो बैठे हैं, बट दे आर बिजी इन देयर मोबाइल और दे आर बिजी इन समथिंग एल्स, वो आपको सुन नहीं रहे। सी इज वेरी इंपॉर्टेंट।
না সপ্তাহ नहीं जागरूक दे आर कमिटेड, मतलब जो कागज पेन लेके बैठेंगे। आज भी यहाँ पे भी लोग होंगे जिन्होंने सोचा होगा कि यार बाकी सेमिनार्स चल रहे हैं, हमको जाना है, सुनना है, चले जाना है। इफ यू आर थिंकिंग लाइक दैट, तो आप यहाँ से कुछ नहीं लेके जाओगे। बट इफ अगर आपको लग रहा है कि आप एक स्किल सीखने वाले हैं, तो आप कागज पेन कॉपी पेन लेके बैठे होंगे और आप कुछ नोट करेंगे, और मैं कुछ लिंक्स आपको दूंगा, तो वहां जाके आप प्रैक्टिस भी कर सकते। वैसी ऑडियंस मिलती है आपको जो कमिटेड होती है, कुछ लर्न करना चाह रही है, कुछ सीखना चाह रही है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डी, अब मैं जो वर्ड बोल रहा हूँ हो सकता है कि आपको शॉक लगे, लेकिन होता है ऐसा। दीज आर कॉल्ड डॉन ऑडियंस। वो लोग जो हैं, ऐसी ऑडियंस है जो जाने अनजाने आपको डिस्टर्ब करे। एक्चुअली दे आर, वो उनका नेचर है। और ऐसे लोग 2% 1% होंगे, हर मीटिंग में होंगे, जो बीच मीटिंग में खड़े होकर आपसे कुछ बात करने लगेंगे, कोई क्वेश्चन करने लगेंगे। वो दे जस्ट वांट टू ग्रैब द अटेंशन ऑफ ऑडियंस कि मैं भी हूँ, खाली जो स्टेज पे बोल रहा है वही नहीं है, मैं भी कुछ रखता हूँ वैल्यू। तो इसको अगर आप समराइज करें तो A and C is 99% and B and D is 1%. Being a commerce student, मैं A और C मतलब AC कूल, जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे, वो 99% होंगे। एंड B and D जो कॉमर्स के होंगे वो समझ रहे होंगे, बैड डेप्थ, जो आपके लिए प्रॉब्लम होंगे, बट उनको टैकल करना इज वेरी इजी। और हम सब टीचर्स, हम सब जानते हैं कि ऐसे ऑडियंस को हम कैसे टैकल करते हैं। बट पब्लिक स्पीकिंग में भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। दिस टाइम वी फिल्टर द ऑडियंस। नाउ वी मूव, जब ऑडियंस की बात आ गई तो हमें फोकस 99% पे करना है, 1% पे नहीं करना है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन पब्लिक स्पीकिंग, क्योंकि आपको वो 1% पूरे स्पीच को कोलैप्स करने की ताकत रखता है। दैट इज द फाउंडेशन। अब फाउंडेशन का सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट है व्हाई यू आर हियर। आप क्यों टॉक डिलीवर कर रहे हो, व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज योर मोटिव। तो मेरा ऑब्जेक्टिव यहाँ पर क्या होगा, आप गेस करके कोई बताएगा। व्हाई आई एम हियर, टू एजुकेट यू, टू इंस्पायर यू, टू एंटरटेन यू और गिव द होप। व्हाई आई एम हियर। सेम आप जब कहीं टॉक देने जाओगे तो कपिल शर्मा होप नहीं देता है, कपिल शर्मा एंटरटेन करता है। संदीप महसूरी जी इंस्पायर करते हैं, होप देते हैं। सो व्हाई यू आर गोइंग ऑन स्टेज, क्यों आप जा रहे हो। आपके बैक ऑफ द माइंड ये क्लियर होना चाहिए कि व्हाई यू आर गोइंग टू डिलीवर अ टॉक, टू एजुकेट, टू इंस्पायर, टू एंटरटेन, टू होप। क्योंकि अगर ये डिसाइड कर लिया तो आपका पूरा कंटेंट चेंज हो जाएगा। सेम टॉपिक बट कंटेंट चेंज। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, व्हाट इज योर अल्टीमेट गोल, योर अल्टीमेट मैसेज। व्हाट इज माय अल्टीमेट गोल आज के लिए। आई वांट टू गिव यू द ब्लूप्रिंट ऑफ ABCDE। 5 स्टेप में पूरा पब्लिक स्पीकिंग के खाका आपके दिमाग में मुझे देना है। व्हाट इज A, व्हाट इज B, व्हाट इज C, व्हाट इज D, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। दैट इज माय अल्टीमेट मैसेज, कि मैं अगर 3 साल पहले नहीं बोल पाता था और आज इफेक्टिवली बोल पाता हूं, कहीं भी बोल पाता हूं, अपनी फेवरेट टॉपिक पे बात कर पाता हूं, तो उसके पीछे रीजन है ये ABCDE, नथिंग एल्स। नाउ वी आर मूविंग कि प्रेजेंटेशन को बिल्ड करने के लिए क्या चाहिए होगा, क्योंकि ये इतना फास्ट इसलिए चल रहा हूं कि 400 पन्ने की स्लाइड है सर। इट इज नॉट पॉसिबल टू डिलीवर इन 45 मिनट, बट आई एम ट्राइंग टू डिलीवर इट, क्योंकि ये 21 दिन का पूरा मेरा स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है, उसको मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में दे रहा हूं। तो ये 4 स्टेप्स जो हैं, व्हाट वी शुड डू बिफोर स्पीक। ABCDE की मैं बात कर रहा हूं सर, ध्यान दीजिएगा। A मीन्स एटीट्यूड, कैसा हमको अपना बिहेवियर रखना होगा। B मीन्स व्हाट वी डू बिफोर द प्रेजेंटेशन। तो एटीट्यूड के लिए जो अपन ने बात की कि ऑडियंस माइंड में क्लियर होनी चाहिए, टॉपिक माइंड में क्लियर होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव माइंड में क्लियर होना चाहिए। अगर ये प्रेजेंटेशन के पहले, बिफोर द प्रेजेंटेशन अगर आप रेडी कर लेते हो, देन सेकंड टॉपिक आता है कि व्हाट वी शुड डू बिफोर वी स्पीक अ सिंगल वर्ड। स्टेज पे गए बिना कुछ शब्द बोले हमें क्या करना है। सेकंड इज हाउ टू स्टार्ट। थर्ड इज
हाउ टू ऑर्गेनाइज द कंटेंट यानी सी, डी मीन्स हाउ टू डिलीवर द कंटेंट एंड ई मीन्स हाउ टू एंड द प्रेजेंटेशन एग्जैक्टली। क्योंकि अंत भला तो सब भला, अंत गड़बड़ हो गया ना तो आपने अच्छा खासा खाना भी अगर बना के मेहमान को खिलाया है और लास्ट में आपने उसको मिर्ची परोस दी रसगुल्ले की जगह, तो पूरे खाने का मजा खत्म। तो इट इज नेसेसरी कि एंडिंग इज प्लान्ड, हमारी एंडिंग प्रॉपर प्लान्ड होनी चाहिए ताकि हमारा पूरा प्रेजेंटेशन कोलैप्स ना हो जाए। नाउ लेट्स मूव फर्दर कि आगे हम कैसे धीरे धीरे अपने प्रेजेंटेशन को बिल्डअप करेंगे। अब बात करते हैं अपने बी पार्ट की। ए पार्ट था एटीट्यूड, जिस पे अपन ने बात की कि हमारी ऑडियंस कैसी होगी हमें पहले से पता करना है, हमारा टॉपिक क्या होगा हमें पहले से पता होना चाहिए, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा और हमारा मैसेज क्या होगा। दैट इज अवर बिल्डिंग ब्लॉक बिफोर स्टार्टिंग द प्रेजेंटेशन। ए एटीट्यूड कैसा होना चाहिए वो उससे तैयार होगा उन 5 पॉइंट्स को कवर अप करने से। बी मीन्स व्हाट वी डू बिफोर द प्रेजेंटेशन, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब देखिए आप क्या देखा आपने इसमें, जब लोग स्टेज पे जाते हैं उनका नाम अनाउंस होता है तो कुछ इस तरह से लोग खड़े होते हैं या नहीं होते? एनीवन अगर वो रिस्पॉन्ड कर सके। अदरवाइज ये टॉक सिंपल वन वे टॉकिंग रह जाएगा। होता है ऐसे लोग खड़े होते हैं। व्हाट इट शो, क्या इससे शो होता है? We show the respect to the person that who is going to be speak on the stage. And that is the respect. अगर आप एज ए स्पीकर स्टेज पे जा रहे हैं और आप इस बिहेवियर पे खड़े हो रहे हैं तो ऑडियंस क्या गेस करे? व्हाट कम्स इन ऑडियंस माइंड? तो आप मुझे बताइएगा कि ये वाला एटीट्यूड ज्यादा बेहतर है या पहले वाला? कौन सा बेहतर, कौन सा पोस्चर बेहतर? और सेकंड वाला सर। डेफिनेटली। तो इससे Definitely. ऑडियंस, जस्ट इमेजिन आप स्टेज पे जा रहे हो और आप इस तरह से खड़े हो तो ऑडियंस के दिमाग में अभी आप एक सिंगल वर्ड भी आपने नहीं बोला और ऑडियंस के माइंड में आपको लेकर के क्या आएगा? यार बंदे में कुछ दम है, इसको सुनना चाहिए। डेफिनेटली। अब मैं, क्योंकि हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, स्टेज पे जा रहे हैं ऑडियंस का अटेंशन हमें ग्रैब करना है और उसके लिए आपका एक एक स्टेप बहुत मायने रखता है। जस्ट इमेजिन, आई डोंट नो एग्जैक्टली, जब मैं अभी ऑन कैमरा जैसे मैं आया आप सब ने अपना माइंड मेकअप कर लिया होगा कि यार इस बंदे को ध्यान से सुनना है कि नहीं सुनना है, कि केवल कैमरा ऑन करके बैठ जाना है या कैमरा बंद करके बैठ जाना है। ये ऑडियंस करती है, बट दैट इज माय ऑब्जेक्टिव कि मैं अपनी ऑडियंस का अटेंशन कैसे ग्रैब करूं, ये मेरे अंदर होना चाहिए। तो ऑडियंस कैसे सोचेगी जब आप स्टेज पे खड़े हो रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैसा सोच रही है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट कंटेंट आता है कि आप जब स्टेज पे जा रहे हैं व्हाट इज द योर वे टू स्टैंड। आप पोडियम के पीछे खड़े होते हैं या सेंटर ऑन द स्टेज खड़े होते हैं, डजंट मैटर, पर खड़े कैसे होते, दैट इज इंपॉर्टेंट। सेकेंड पॉइंट पे जब हम आते हैं तो व्हाट वी डू, जब हम स्टेज पे आके खड़े हो गए तो हमें पहला स्टेप क्या करना चाहिए? बिकॉज इस वर्ड में सब कुछ छिपा हुआ है। ऑडियंस क्या सोचती है? स्पीक किंग। ऑडियंस ऑलरेडी आपको किंग मान चुकी है। क्यों? मैं एक एग्जांपल देता हूं, क्योंकि सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कैमरा ऑन किया, मैं आपसे बात कर पाऊंगा। जस्ट इमेजिन अगर 5 साल का बच्चा स्टेज पे खड़ा है और वो आपसे बोलता है रेज योर हैंड, आप लोग हाथ खड़े करेंगे या नहीं करेंगे? 5 साल के बच्चे को स्टेज पे इनवाइट किया गया, उसने आपसे हाँ, करेंगे 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 सर। अच्छा, अगर वही बच्चा आपको प्रोग्राम खत्म होने के बाद 2 दिन 3 दिन 4 दिन बाद ऑन रोड मिलता है और वो बोलता है रेज योर हैंड, करेंगे? नहीं सर, नहीं Why? नहीं। That is the magic of stage. एंड आपका बैकअप द माइंड क्या हो गया एज अ ऑडियंस, यार बंदे में कुछ दम होगा तब उसको स्टेज मिला है, मुझे नहीं मिला। तो स्पीकिंग जो बोल रहा है ना वो ऑलरेडी किंग की तरह पब्लिक के दिमाग में उसकी इमेज हो जाती है। अब उस किंग को अपनी इमेज को मेंटेन करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। इमेज ऑलरेडी बिल्डअप है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है व्हाट यू डू। आप स्टेज पे पहुंच गए, अब आप क्या करेंगे? तो आप ये गलतियां नहीं करेंगे।
कि कोना राइट लेफ्ट कॉर्नर पे चले जाएं, पोडियम के बहुत बैक में खड़े हो जाएं, आपकी सिर्फ इतना हिस्सा दिख रहा है। डू समथिंग इफेक्टिव। ये इंटरनेशनल स्टेज है टेडक्स, सबको देखिए, सब सेंटर ऑन द स्टेज खड़े हैं, सब सेंटर पे खड़े हैं। फिर मैं बात करूं व्हाट यू डू बिफोर स्टार्टिंग अ सिंगल वर्ड। अभी आप कुछ नहीं बोल रहे, सिर्फ जाके खड़े हुए हैं, आपका इंट्रोडक्शन चल रहा है। आप कब अपनी बात स्टार्ट करेंगे? जस्ट थिंक, आपका इंट्रोडक्शन खत्म हुआ, अगर सामने वाला आपसे शेक हैंड करने आता है, जिसने आपको इंट्रोड्यूस किया है, तो शेक हैंड करिए। उसका इम्पैक्ट क्या है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। एक्चुअली में जब आप नहीं थे स्टेज पे तो सामने वाला किंग था। अब जब एक किंग दूसरे किंग को पावर ट्रांसफर करेगा बाय शेक हैंड और वो चला जाएगा, देन यू गेट द पावर टू ऑफ स्टेज। उसके स्टेज से उतर जाने दीजिए उसे, देन यू टेक योर ओन पोजीशन, देन यू डू ओनली वन थिंग, दैट is known as pause and pan method। वो कैसे चलेगा? अभी मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। मैं सेंटर ऑन द स्टेज खड़ा हूं, तो मैं केवल हल्की से एक स्माइल लूंगा और लेफ्ट ऑडियंस एंड सेंटर ऑडियंस एंड राइट ऑडियंस को स्माइल दूंगा। दैट इज नोन एज पॉज एंड पैन। आप पॉज लीजिए और थोड़ा सा ऑडियंस को पैन कीजिए, यानी थोड़ा सा देखिए चारों तरफ, कौन बैठा है, कैसे बैठा है, क्या कर रहा है, आपको ऑडियंस स्कैनिंग हो जाएगी। अभी आपने सिंगल वर्ड भी बोला नहीं है, ऑडियंस के दिमाग में क्या है कि बंदा जिसने इंट्रोड्यूस किया वो स्टेज से गया है, अब ये बंदा कुछ ना कुछ बोलेगा और आप बोल नहीं रहे। तो जो लोग मोबाइल पे है ना, वो मुंडी ऊपर करेंगे, यार अभी तक आवाज क्यों नहीं आई, इसने कुछ बोला क्यों नहीं। अब बात करते हैं, ये बी पार्ट था, अब बिगिनिंग कैसे होगी, लेट्स सी। अब इसकी प्रैक्टिस आप कैसे कर सकते हो ये भी आप नोट कर लो। इसकी प्रैक्टिस का सिंपल तरीका है, पॉज एंड पैन की प्रैक्टिस करना है अगर तो। अब तीन पेपर ले लीजिए घर में, तीनों में स्माइली बनाइए, लेफ्ट सेंटर राइट में रख दीजिए और सामने खड़े होकर के बस पॉज एंड पैन, और अगर हो सके तो इसकी रिकॉर्डिंग कीजिए एंड चेक इट कि आप प्रॉपर पॉज एंड पैन कर रहे हैं या नहीं। अब मैं आपको सेकंड स्टेप, हाउ टू स्टार्ट। स्टार्ट करने से पहले हम कुछ अनलर्न करेंगे। अनलर्निंग क्या है? बिकॉज अवर ऑब्जेक्टिव टू स्टार्ट टू ग्रैब द अटेंशन, ऑडियंस हमारी तरफ आनी चाहिए, अट्रैक्ट होनी चाहिए। दैट इज अवर ऑब्जेक्टिव नंबर ए टू बी। अभी अटेंशन हमारे पास नहीं है, अब उनको अटेंशन तक पहुंचना है। आपको क्या अनलर्न करना है? दैट इज, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दिस इज रॉन्ग मेथड, बट दैट इज या दिस इज ट्रेडिशनल वे टू स्टार्ट। जस्ट लाइक गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हमने कई बार सुना होगा लोग 3-3, 4-4 बार गुड मॉर्निंग करते हैं, गुड आफ्टरनून करते हैं या गुड इवनिंग करते हैं, तो ग्रैब द अटेंशन। और ऑडियंस को भी मालूम है कि अब ये 3 बार बोलेगा तभी मुंडी ऊपर करनी है। जस्ट इमेजिन, सोच के देखिए, आपको मालूम है ऑलरेडी एज अ ऑडियंस, यार बंदा गुड मॉर्निंग एक बार बोलेगा, 2 बार बोलेगा, तीसरी बार बोलेगा तब बात चालू करेगा। तो जब उनको वो चीज पता है तो वही काम क्यों कर रहे हो? मैं नहीं कर रहा हूँ दिस इज रॉन्ग, बट दैट इज ट्रेडिशनल वे टू स्टार्ट, पुराना तरीका है। दूसरा क्या है? गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, गुड मॉर्निंग बॉयज एंड गर्ल्स। Again, this is traditional way to start. What is the second unlearning? Good morning, my name is Dr. Rajesh Agarwal. I am going to present a topic on the topic of public speaking. जो आपको ऑलरेडी मालूम है मेरा नाम, क्योंकि आपके पास फ्लायर आ चुका है, मेरा टॉपिक फ्लायर आ चुका है। मेरा इतना लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन देने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि फ्लायर में सब कुछ लिखा, जो ऑलरेडी इंट्रोड्यूसर कंटेंट है, अब मैं वही कंटेंट दोबारा डिलीवर कर रहा हूं। तो आप ऑलरेडी आप स्टार्टिंग के 40-50 सेकंड 60 सेकंड जो है अटेंशन ग्रैब करने का टाइम, वो मैंने आपको वो इंफॉर्मेशन दी जो ऑलरेडी आपके पास थी। तो अटेंशन कहां से आएगा? तो अटेंशन आएगा कैसे? जस्ट इमेजिन, ये दिमाग में रखिएगा, पहले ऑडियंस के ब्रेन में क्या है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग।
गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन। ये ऑडियंस एक्सपेक्ट कर रही है स्पीकर से कि ये बात आएगी। अब आप चेंज कर रहे हो, कैसे? लेट्स सी। हम आपके साथ 3 टेक्निक है, एक की बात करेंगे क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं है। दैट इज टेक्निक नंबर 1, आई रिमेम्बर। अब मैं आज का सेम टॉपिक आपके साथ डिस्कशन करता हूं, उसको फर्स्ट वर्डिंग बनाता हूं। आई रिमेम्बर 3 years ago आई एम नॉट एबल टू स्पीक अ सिंगल वर्ड इन फ्रंट ऑफ स्मॉल ऑडियंस, not more than 5 to 10 people. But when I realized this is the biggest skill, I want to learn it. Then I joined a course on public speaking by Mr. Praveen Badalkar 3 years ago. I learn it, I practice it, and I read more than 10 books on that particular topic. And now I find 4-step system of public speaking given by the Praveen Badalkar. Today I am going to deliver, or today I am going to show you these 4 important steps. Good morning, friends. My name is Dr. Rajesh Agrawal. मैंने अपनी बात रखी, पब्लिक सोच क्या रही थी? गुड मॉर्निंग होगा। मैंने गुड मॉर्निंग भी किया, गुड मॉर्निंग भी किया, गुड इवनिंग भी किया। जो उस समय टाइम के अकॉर्डिंग जरूरी है वो वर्ड मैंने यूज कर लिया। अभी था मुझे गुड इवनिंग बोलना चाहिए तो मैं गुड इवनिंग बोल देता हूँ, नो इश्यू। बट मैंने गुड मॉर्निंग से स्टार्ट नहीं किया तो ऑडियंस को लगा यार ये क्या हो गया, कुछ नया हो रहा है। कई लोग शायरी से स्टार्ट करते हैं, दैट्स वेरी गुड। थाउजेंड्स ऑफ वे हैं, बहुत सारे तरीके हैं। बट मैं इससे एक एग्जांपल लेके चलता हूँ कि जैसे धोनी का फेवरेट शॉट क्या है? हेलीकॉप्टर शॉट। इट डजंट मीन कि उसको बाकी शॉट खेलने नहीं आते, बट वो एक शॉट बहुत अच्छी तरह से जानता है। तो दैट इज इंपॉर्टेंट। आप एक शॉट में महारत हासिल कर लो, क्योंकि ऑडियंस बार बार बदलनी है, आप तो वही रहने वाले हो ना। तो आप एक शॉट को स्पेशलिस्ट बन जाओ। उसको मैंने थोड़ा इस तरह से लिया था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि कैसे अपनी स्पीच की बिगिनिंग को फ्रेम आप कर सकते। नाउ वी मूव। सेकंड टेक्निक भी है, इमेजिन फॉर अ मोमेंट। पब्लिक को इमेजिनेशन पे ले जाओ। इमेजिन फॉर अ मोमेंट आफ्टर 21 days you are able to speak in front of thousands of people because 3 years ago I'm not able to speak a single word, but I learned 4-step system of public speaking by Praveen Badalkar, and now today I'm going to deliver these 4 steps to you. And if you learn it, practice it, then definitely after 21 days you are able to speak in front of thousands of people. Good morning, friends. Yeah, good evening, friends. My name is Dr. Rajesh Agrawal. So I changed the structure of the beginning. तो पब्लिक को इमेजिनेशन पे ले गए हम। Sir, it is important to change the tone group, or it should be falling tone or rising tone. That we can use the rhythm or meter in our speaking. No, it will be effective or not? I'm just because I'm not able to understand what you want to say exactly. No. In which tone we should introduce ourselves? That it will be the very different way to introduce Simple, ourselves on the stage. It's depend on you, sir. It's depend on you. Okay. वो important नहीं रखता। Okay. Actually में feeling is important. Tone ठीक है important रखती है, but if you feel happy, you deliver happy. तो ये कुछ वे हैं जिनकी प्रैक्टिस मैंने की है सर, मुझे सिखाई गई। और मैं जान रहा हूँ मेरे को पास ऑडियंस नहीं है, तो मैं हर बार अपना टॉपिक रिपीट भी करूंगा ना, तो ऑडियंस को तो नया ही मिलना है। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है पॉपुलर वे। देयर इज समथिंग कॉमन बिटवीन यू एंड मी। अब मैं इसको हिंदी में डिलीवर करता हूँ, इंग्लिश में नहीं। आपकी और मेरे बीच में एक चीज कॉमन है कि जब हमारे पास सामने थाउजेंड्स ऑफ पीपल बैठ जाते हैं ना, तो हमें बोलने में बड़ा, हम कंटेंट भूल जाते हैं, हम डिलीवरी भूल जाते हैं, हमारे पैर कांपने लगते हैं। मेरे साथ ऐसा होता था, आई डोंट नो आपके साथ होता है या नहीं होता। पर 3 साल पहले मैंने एक स्किल के बारे में सुना, दैट इज नोन एज पब्लिक स्पीकिंग स्किल, और प्रवीण बडालकर सर से मैंने उसको सीखा और उनका 4-स्टेप सिस्टम मैंने अडॉप्ट किया, एंड आई प्रैक्टिस टिल नाउ। और अभी मैं थाउजेंड्स ऑफ पीपल के सामने आराम से बोल पाता हूँ, अपने कंटेंट को ऑर्गेनाइज कर पाता हूँ और अच्छे से डिलीवर कर पाता हूँ। तो दिस इज द वे आप अपना बिगिनिंग कैसे कर सकते। ये 3 तरीके हैं, 30 भी हो सकते हैं, 300 भी हो सकते हैं सर। बट इंपॉर्टेंट ये नहीं कि 300 तरीके हमें पता है, इंपॉर्टेंट ये कि कौन से 2 तरीके 3 तरीके हमसे अच्छे से खेलते आता है इन एनी टॉपिक।
आप इसको स्ट्रक्चर में फिट कर दो बस। ये तो हो गया बिगिनिंग। अब बिगिनिंग के बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, दैट इज डिलीवरी ऑफ कंटेंट। कंटेंट कैसे डिजाइन होगा इसके बारे में भी अपन बात करेंगे। अभी हम कंटेंट की डिलीवरी पे बात करते हैं। जो हम डिलीवर करने जाते हैं, तो ये प्रवीण सर का बहुत फेवरेट टॉक मतलब सेंटेंस है, इफ द ऑडियंस इज स्लीपिंग समवन हैज वेक अप द स्पीकर। अगर आप ध्यान से नहीं सुन रहे हैं या आप सो रहे हैं, दिस इज नॉट योर फॉल्ट, दिस इज माय फॉल्ट एज अ स्पीकर, कि मैं अपना कंटेंट इफेक्टिवली अब तक दे नहीं पा रहा हूं। दैट इज इंपॉर्टेंट। ये प्रवीण सर कहते हैं कि यार ऑडियंस में गड़बड़ नहीं है, स्पीकर में गड़बड़ है। स्पीकर में दम होगा, सामने वाला सुनेगा और नोट्स भी बनाएगा। नो, आई टॉक अबाउट द मिस्टर एल्बर्ट मेरेबियन, जिनके लिए मैं क्लैप करना चाहूंगा, जिन्होंने आज से 30 साल 40 साल पहले एक स्टडी की और बताया कि पब्लिक स्पीकिंग में क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। उन्होंने 3 चीजों के बारे में बहुत फोकस किया। These 3 things are these 3: कंटेंट, बॉडी लैंग्वेज एंड वोकल वैरायटी। अगर आपके पास कॉपी पेन है तो आप इसका 100 में परसेंटेज डिवाइड कर लीजिए कि कंटेंट कितने परसेंट इंपॉर्टेंट है, बॉडी लैंग्वेज कितने परसेंट इंपॉर्टेंट है और वोकल वैरायटी कितने परसेंट इंपॉर्टेंट है। नोट डाउन कर लीजिए, बिकॉज मे बी आप शॉक्ड हो जाए कि कौन सी चीज कितने परसेंट इंपॉर्टेंट है। एल्बर्ट मेरेबियन ने लगभग 10,000 से ज्यादा लोगों पे रिसर्च करने के बाद आज से 45 साल पहले ये दिया था, और आज भी ये एग्जैक्ट सही होता है। क्या है वो चीज? अगर आप नोट कर लिया हो तो मैं आगे बढ़ता हूं। उन्होंने बताया 7% कंटेंट, 55% बॉडी लैंग्वेज एंड 38% वोकल वैरायटी यानी वॉइस मॉड्यूलेशन इज इंपॉर्टेंट। इट मीन्स 7% कोई मायने नहीं रखता क्या? रखता है, बिकॉज वो बॉडी है। कंटेंट इज अ बॉडी एंड 55% इज अ सोल एंड 38% जो बाकी की चीजें, नेचर, एटमॉस्फेयर, ये सारी चीजें, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। अब नाउ वी मूव टू द कंटेंट में 3 चीजें हैं जिसके बारे में डिटेल में आगे बात होगी। कंटेंट की क्वालिटी, रिलेवेंस एंड उसमें क्रिएटिविटी कितनी है। बॉडी लैंग्वेज पे अपन बात करेंगे। बॉडी लैंग्वेज पे सबसे इंपॉर्टेंट इन 5 पार्ट पे बात करेंगे: हैंड, लेग, आई, शोल्डर एंड माउथ। हाउ टू यूज इट, इनका कैसे प्रॉपर स्ट्रक्चर वे में यूज होना चाहिए। जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। सभी लोग बोलते हैं कि जब आप बात कर रहे हो तो आई कांटेक्ट मेंटेन करो, बट किसी ने बताया आपको कि कैसे करो? टेल मी एनीवन। आई कांटेक्ट मेंटेन करने को सब बोलते हैं, बट कैसे करेंगे, इसकी प्रैक्टिस कैसे होगी, नोबडी से लोग नहीं बताते। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम अब 5 पॉइंट पे बात करेंगे धीरे धीरे। नाउ वी मूव, वोकल वैरायटी में भी अपन बात करेंगे। वोकल वैरायटी में हम इन टॉपिक से बात करेंगे: वॉल्यूम, टोन एंड स्पीड। ऑल 3 को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, सबके टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ टाइम में थोड़ा रैपिड फायर में चलूंगा। ये सारा कुछ मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, आप आराम से वहां देख सकते हैं। अब वोकल वैरायटी में वॉल्यूम हाई, स्लो और नॉर्मल तीनों हो सकता है। टोन में फीलिंग और इमोशन का पूरा खेल है। स्पीड में बहुत सारे लोग बहुत फास्ट बोलते हैं, बहुत सारे लोग बहुत स्लो बोलते हैं। अब मैं किसी पर्टिकुलर बंदे का नाम नहीं लूंगा, आप सब समझ रहे हैं कौन बहुत स्लो बोलता है, ऐसा स्पीकर कौन है, बहुत फास्ट बोलने वाला स्पीकर कौन है, यू नो वेरी वेल। अब मैं आता हूँ बॉडी लैंग्वेज पे 1 by 1। वो तो ब्रीफ थोड़ा सा शॉर्ट में इंट्रोडक्शन था पूरे बॉडी लैंग्वेज। अब डिटेल में बात करें तो जेस्चर एंड पोस्चर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो जेस्चर में लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं इस पिक्चर से थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। जेस्चर की जब बात आती है ना, तो बीइंग हम लोग सब एडल्ट में आते हैं, मैच्योर पर्सन्स में आते हैं। तो जेस्चर का जब हम यूज करें, इन पब्लिक स्पीकिंग की बात कर रहा हूँ, नॉट इन ड्रामा, नॉट इन स्टैंड अप कॉमेडी, सीरियस टॉक की मैं बात कर रहा हूँ। वहां पर जेस्चर तभी इंपॉर्टेंट है जब ऐसी कोई बात आप कहने जा रहे हैं जिसको पब्लिक इमेजिन नहीं कर सकती। जस्ट इमेजिन, इसमें बच्ची बता रही कि एक टाइगर आया। अब जस्ट इमेजिन मैं आपसे बोलूं कि एक टाइगर आया,
तो आपको लगेगा यार क्या मजाक कर रहा है यार, हमको मालूम है टाइगर कैसा होता है। बट जब बच्चों के सामने आप उस चीज को प्रेजेंट करेंगे लाइक दिस, ये बच्चे बैठे हैं, अब टीचर अगर प्रेजेंट करेगी तो बच्चों ने टाइगर हो सकता है ना देखा हो, तो उसको बताना पड़ेगा टाइगर ऐसा हो। बट यहां मैं वो एक्ट करूंगा तो ये जेस्चर राइट जेस्चर नहीं होगा। तो वी नीड टू वेरी केयरफुल व्हेन वी आर यूजिंग सम जेस्चर इन पब्लिक स्पीच। Now we move our first important part, that is hand. How to use our hand? क्या लगता है ये पोस्चर जो है हाथों को यूज करने का, कई लोग करते हैं ऑन स्टेज, ऐसे खड़े हो जाएंगे, जेब में हाथ डाल के खड़े रहेंगे, हाथ पीछे होंगे, हाथ बंधे होंगे। तो ये सब जो वे हैं ऑडियंस के ब्रेन में एक पिक्चर क्रिएट करते हैं कि सामने वाले के कंटेंट में उसको कॉन्फिडेंस नहीं, वो जो डिलीवर कर रहा है उस पर वो खुद ही भरोसा नहीं कर पाता। ठीक है, अब मैं अगर बात करूं, जस्ट इमेजिन, वेट अ मिनट, हैंड्स में, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है ये कि हम हाथों को कैसे यूज करें। तो देयर इज टू वे, दो तरीके हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, इसमें आप मुझे चूज करके बताइएगा। ये तरीका पब्लिक को एड्रेस करने का सही है या ये वाला तरीका? दिस इज द सेकंड वे एंड दिस वन इज द फर्स्ट। डेफिनेटली आप कहेंगे कि सेकंड। यस सर, सेकंड। ठीक है ना, अब मैं थोड़ा सा Second वाला बात करता हूँ इसको क्यों ऐसा मैंने आपसे बोला। देयर आर टू वे टू रिप्रेजेंट अवर हैंड्स। एक को बोलते हैं ओपन हैंड जेस्चर। नाउ वी मूव टू द टेक्निक नंबर 1, दैट इज बैगर मेथड या ओपन हैंड जेस्चर। इन हाथों में बड़ी ताकत होती है सर, इसमें वाइब्रेशंस होती है। आप अगर हाथ को रब करें और उसके बाद अपनी आंखों के पास ले जाएं या ऐसा फील करें तो आपको यहाँ वाइब्रेशंस फील होंगे। तो जब आप पब्लिक स्पीकिंग में बात कर रहे हैं ना और आप अपने हाथों को इस तरह से लेके जाते हैं, ओपन एंड करते हैं, तो वो वाइब्रेशंस ट्रांसफर होती है। जब लोग आशीर्वाद देते हैं तो ऐसे ही देते हैं, वाइब्रेशंस ट्रांसफर होती है। जब आप ओपन हैंड रखते हैं तो उससे वाइब्रेशंस, पॉजिटिव वाइब्रेशंस ट्रांसफर होती हैं या आपकी निगेटिविटी खत्म होती है। दैट इज ओपन हैंड। बट आप देख लीजिए बड़े बड़े स्पीकर्स भी ओपन हैंड का यूज करते हैं। वी नीड टू शो अवर पाम। अब इसमें भी अगर आपको प्रॉब्लम है, मान लेते हैं ये लोगों को लगता है यार मेरा हाथ ही नहीं खुलता, मैं क्या करूं, तो हाथ बंद करके रखिए। लेकिन कैसे? देखिए मेरी बात ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे जब हम गाड़ी सीख रहे होते हैं तो हमारा ध्यान पूरी तरह से गाड़ी पे होता है, लेकिन जब हम सीख जाते हैं तो हम कैसे भी चला लेते हैं। तो अगर स्टार्टिंग में आपका हाथ ओपन नहीं हो रहा है ना, जस्ट फोकस ऑन इट, धीरे धीरे होने लगेगा। अगर मैं आगे बात करूं तो सेकंड वे क्या है, आप इन सब को देखिए, सब टॉप लीडर्स हैं, उन्होंने एक ही तरीके से हाथ कर रखा। इट इज नोन एज स्टीपल मेथड, जिसमें हम पांचों फिंगर्स को, पांचों हाथ उंगलियों को यूं रखते हैं। अब आप ऊपर रखिए, दाएं रखिए, बाएं रखिए, कहीं भी रखिए, बहुत प्रेशराइज मत करिए, बस जस्ट पुट इट। इसका कई इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। ये पांचों फिंगर पॉइंट आपके ब्रेन पॉइंट को एक्टिवेट करते रहते। ये आपको रोकेंगे कि जेब में हाथ नहीं डालना है, पीछे नहीं ले जाना, दाएं नहीं ले जाना है। और जब ओपन करना होगा तो बड़ा आसान है ओपन कर लेना, फिर वापस वहीं पहुंच जाना। तो लर्न दीज टू मेथड टू यूज योर हैंड, ओपन हैंड और स्टीपल। अब इसकी प्रैक्टिस कैसे होगी? जस्ट स्टार्ट योर कैमरा, डिलीवर योर स्पीच। जब भी आप कहीं टॉक दे रहे हैं, किसी को बोलिए आपकी रिकॉर्डिंग करें। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर वो रिकॉर्डिंग करेगा, आप उस रिकॉर्डिंग को जब दोबारा देखेंगे तो आपके ब्रेन को एक मैसेज जाएगा कि यार आप यहाँ पे जेब में हाथ डाला था। अब जब आप अगली बार डिलीवर करेंगे तो ब्रेन, जब जेब में हाथ जा रहा होगा, ब्रेन रोक लेगा। जस्ट कैसे, मैं उसका भी एक एग्जांपल आपको देता हूँ। आप सब ने गाड़ी चलाई है, कहीं ना कहीं कभी ना कभी छोटा मोटा एक्सीडेंट हुआ होगा। आज आप जब भी उस जगह से निकलते हैं, आपकी गाड़ी अपने आप धीमी होती है
यस या नो। आप रोकते नहीं है, पर कुछ तो होता है ब्रेन में कि उस पर्टिकुलर स्पॉट पे गाड़ी रुकती है, हल्की होती है, धीमी होती है। व्हाट इज द रीजन? ब्रेन के पास डेटा है, उसको पता है यहाँ पे कुछ हुआ था। सेम चीज जब आप वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, उसको दोबारा देखेंगे, ब्रेन को मैसेज मिलेगा, और ब्रेन अगर दोबारा आप गलती करेंगे उसको रोकेगा। आपको पता भी नहीं होगा वो रोकेगा। इट इज पॉसिबल, और हुआ है मेरे साथ। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, थोड़ा सा स्पीड लेता हूँ। ये स्टीपल मेथड है। ये हम बच्चों को असाइनमेंट जो देते हैं ट्रेनिंग में, वो सारे थे। नाउ वी मूव आईज। सब बोलते हैं आई कांटेक्ट मेंटेन करो, आई कांटेक्ट मेंटेन करो। तो उसमें कुछ अनलर्निंग्स क्या है, हम ऊपर देखने लगते हैं, दाएं देखते हैं, बाएं देखते हैं, लेफ्ट देखते हैं, राइट देखते हैं। अब ये कैसे गायब होगा? हाउ टू डू इट? लेट्स सी। तो देयर आर टू मेथड। मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, इसलिए सीधे मेथड पे आता हूँ। मेथड नंबर 1, चेंज द सेंटेंस, चेंज द पर्सन। इफ यू वांट टू मेंटेन प्रॉपर आई कांटेक्ट, आप एक सेंटेंस यहाँ बोलो, दूसरा यहाँ बोल दो, और तीसरा यहाँ बोल दो। आप जब भी सेंटेंस चेंज करो, बंदा चेंज करो। आप एक बंदे की आंख में आंख डाल के बात मत करो। हम लोग बहुत सारी मीटिंग्स में यही गलती करते हैं, बॉस को देख के पूरी बात करते हैं और पूरी बात का कबाड़ा कर देते हैं। हम सोच रहे होते हैं कि हम फोकस ऑन बॉस, और एक्चुअली में आप गड़बड़ कर रहे हो। बाकी लोग भी तो बैठे हैं। सेम एज अ स्पीकर, थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैं। आप एक बंदे पे क्यों फोकस कर रहे हो? सेंटेंस चेंज करो, बंदा चेंज करो। अब इंपॉर्टेंट आता है, सर आंख में आंख डाल के बात करते हैं तो घबराहट होती है। अरे कौन कह रहा है आंख में आंख डालो भाई? उनके आईब्रोज को देख लो, उनके माथे को देख लो, उनके बाल को देख लो। उसको नहीं मालूम पड़ने वाला कि आप आंख देख रहे हो कि बाल देख रहे हो। बट इंपॉर्टेंट है कि एक बंदे की आंख में बार बार लगातार मत देखो। चेंज द सेंटेंस, चेंज द पर्सन। अब इसकी प्रैक्टिस कैसे होगी? अगेन आई से सेम, कैमरा सेंटर पे, इधर एक आप डॉल रख दीजिए, इधर एक डॉल रख दीजिए, लेफ्ट एंड राइट में। सेंटर में हो जाए तो सेंटर में भी रख दीजिए। देन डिलीवर योर टॉक एंड रिकॉर्ड इट। पहला सेंटेंस इसके साथ, दूसरा इनके साथ, तीसरा इनके साथ। प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, नो डाउट। तो इस तरीके से आप प्रॉपर आई कांटेक्ट मेंटेन कर पाएंगे। इसी का एक छोटा सा सेकंड पार्ट भी है वही चीज, बट क्योंकि लोगों को ज्यादा चीजें सुनने में ज्यादा मजा आता है, तो दो पार्ट बना दिए। सेकंड क्या है? बाय मेकिंग वीडियोस। सेकंड मेथड, ये मैंने डॉल वाला आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। मेथड नंबर 2, इज, शायद इसमें से हट गया, चेंज द प्लेस, चेंज द सेंटेंस, पर्सन। जगह बदल दो। पूरे स्टेज में आप मूव कर रहे हो, लेफ्ट सेंटर राइट, लेफ्ट सेंटर राइट, आपका आई कांटेक्ट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। प्रैक्टिस के लिए वीडियो मेकिंग इज द बेस्ट वे। अब अच्छा, किसी ने सवाल ये नहीं किया कि वाई वीडियो मेकिंग? मिरर के सामने भी तो प्रैक्टिस कर सकते, और हमको सिखाया भी गया, हम भी बच्चों को सिखाते हैं कि आईने के सामने प्रैक्टिस करो। प्रवीण सर हमको सिखाते हैं आईने के सामने प्रैक्टिस क्यों नहीं करनी चाहिए। आई डोंट नो आई एम राइट और रॉन्ग, बट मैंने इसको फायदा लिया है, मेरे को मिला है। अगर हम आईने के सामने प्रैक्टिस करते हैं ना, तो हमारा ब्रेन दो काम करता है। एक तो प्रेजेंटेशन को डिलीवर करने पे ध्यान देता है, दूसरा उसको मॉनिटर करने पे भी ध्यान देता है। एक साथ दो फंक्शन चल रहे हैं। अब प्रवीण सर कहते हैं कि यू जस्ट डिलीवर योर टॉक इन फ्रंट ऑफ कैमरा, बैक कैमरा, नॉट इन फ्रंट कैमरा। मोबाइल के बैक कैमरे से रिकॉर्ड कर लो, डिलीवर कर दो टॉक। ब्रेन एक काम में बिजी है, ओनली डिलीवरिंग योर टॉक। दूसरे काम में उसका इंटेंशन ही नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, रिकॉर्ड इट। फिर उन्होंने बोला उसको मॉनिटर करो, अब रिकॉर्डिंग को देखो। दो तरीके से उन्होंने बोला, दो तरीके से देखो। कैसे? पहले ऑडियो ऑफ कर दो, केवल वीडियो देखो। चेक बॉडी लैंग्वेज, हाथ कैसे काम कर रहा है, लेग कैसे काम कर रहे हैं, आंखें कैसे काम कर रही है, शोल्डर कैसे काम कर रहे हैं, फेस इंप्रेशन कैसा है तुम्हारा, फेशियल एक्सप्रेशन कैसे है, चेक इट, नोट डाउन इट। सेकंड उन्होंने बोला अब अपनी आंखें बंद करो, हेडफोन लगाओ, केवल वॉइस सुनो, चेक योर वोकल वैरायटी, नोट डाउन कितनी बार आपने गलत वर्ड्स यूज किए, मॉनिटर इट।
अब मॉनिटर का फायदा क्या है, अगली बार जब आप रिकॉर्डिंग करेंगे ना, अगली बार जब आप प्रेजेंटेशन डिलीवर करेंगे, ब्रेन को पता है कहाँ कहाँ गलती हुई थी, उस क्वांटिटी को कम कर देगा वो, उसको मालूम है कैसे सुधारना है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप केवल प्रैक्टिस करिए, सुधार ब्रेन देता है। नाउ वी मूव सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज लेग। हाथ की बात की, आंख की बात की, या पाँव की बात की, बिगेस्ट बॉडी पार्ट इज लेग। अब लोगों के साथ समस्या क्या है, लोग बोलते सर खड़े रह के बोले कि चलते फिरते बोले। अरे भाई दोनों मेथड सही हैं, एक जगह खड़े होकर बोलना भी स्टैंड अप कॉमेडी कहलाता है, बट इंपॉर्टेंट क्या है, व्हाट इज योर इंटेंशन बिहाइंड इट। आप अगर स्टेज पे खड़े होकर एक जगह बात कर रहे हैं तो आपका इंटेंशन खड़े होना है कि डर की वजह से खड़े, दैट इज इंपॉर्टेंट। सेकंड, अगर आप स्टेज पे चलते फिरते बात कर रहे हैं तो भी वो सही है, और हो सकता है तो भी वो गलत है। अगर आप बिकॉज ऑफ फियर आप ऑडियंस को फेस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ दाएं बाएं लेफ्ट राइट दाएं बाएं लेफ्ट राइट टहल रहे हैं, ऑडियंस को के साथ आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं कर रहे हैं, इट मींस दैट इज रॉन्ग। इंटेंशनली खड़े होना सही है, इंटेंशनली मूव करना सही है। बट अगर आपका ब्रेन जबरदस्ती आपको घुमा रहा है पूरे स्टेज पे, या ब्रेन ने जबरदस्ती आपको एक जगह खड़ा कर रखा है, तो दैट इज रॉन्ग। दोनों मेथड में कैसे सेंटेंस, कैसे आप अपने आप को फिट कर सकते हो, मूव फर्दर देखते हैं कैसे कर सकते हैं। अगर आप एक स्टेज पे खड़े होकर बात करने की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उसका तरीका क्या है, उसकी प्रैक्टिस कैसे होगी। क्या होता है जब लोग खड़े होते हैं तो ये गड़बड़ होती है, देखिएगा कभी इस पैर पे वेट आता है, कभी इस पैर पे वेट आता है, एक जगह पे वेट ट्रांसफर करते रहते हैं लोग। इट मींस आप फोर्सफुली खड़े हैं, इंटेंशनली नहीं खड़े हैं। अब इंटेंशनली खड़े होने की प्रैक्टिस कैसे होगी, आप अपने 2 बॉटल्स के ढक्कन ले लीजिए और अपने शूज के ऊपर रख दीजिए, अब खड़े होइए। अब आप जब वेट शिफ्ट करेंगे ना, ढक्कन धड़क जाएगा, ढक्कन गिर जाएगा, दोबारा फिर ढक्कन को उठा के रखिए। ब्रेन को मैसेज पहुंच रहा है कि आपके दोनों पैर ऊपर नीचे हो रहे हैं। 4 6 10 बार आप प्रैक्टिस करेंगे ना, पांव सीधे रहने लगेंगे। दिस इज द वे टू इम्प्रूव अवर स्टैंडिंग, मतलब क्या बोलूंगा मैं, स्टैंड अप कॉमेडी देने का प्रैक्टिस हो जाएगा। खड़े रह के कैसे बोला जाए, एक ही जगह पे स्टेबल रह के आप कैसे बोल सकते। अब दूसरी बात आती है कि अगर हम चलते फिरते बोलते हैं, कई लोग आगे पीछे दाएं बाएं लेफ्ट राइट टहलते रहते हैं, बट दे डोंट मेंटेन द आई कांटेक्ट विद द पीपल। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, सेम आई कांटेक्ट वाला मेथड है। व्हेन यू आर मूविंग, एक्चुअली आप अपनी बॉडी की एनर्जी को रिलीज कर रहे हैं, अपनी बॉडी की एनर्जी को बाहर फेंक रहे हैं। व्हाई, बिकॉज अंदर फियर है। आपने तो कभी देखा है जब 2 लोग झगड़ा करते हैं तो क्या करते हैं, इधर उधर भागते हैं। वो क्या होता है, बॉडी की एनर्जी बाहर फेंक रहे होते हैं। एक्चुअली बॉडी ऐसा करती है। तो जब वहां अंदर फियर होता है, डर होता है, भय होता है बोलते समय भी ना, तो हम थोड़ा टहलने लगते हैं। आप उसका सही तरीका क्या है, दैट राइट वे सीखा है, दैट इज चेंज द पॉइंट चेंज द प्लेस। सेंटेंस बदले जगह बदल दो, सेम आई कांटेक्ट वाला। जब जगह बदलेगी तो आई कांटेक्ट भी बदलेगा और पैरों का मूवमेंट भी होगा। हर सेंटेंस में आपको प्लेस चेंज कर देना है। अगर आप इंटेंशनली मूव करना चाहते हैं तो, मैंने बोला दोनों मेथड सही है, खड़े होकर बोलना भी और मूवमेंट करना भी। दूसरा है चेंज द पर्सन चेंज द प्लेस, पर्सन बदलकर प्लेस बदल दीजिए, दैट इज अनदर वे। तो ये दोनों टेक्निक्स पे अपन ने थोड़ा थोड़ा बात की। तो आप मूवमेंट करते हुए भी बात करेंगे तो चलेगा, या आप एक जगह खड़े होकर बात करेंगे तो भी चलेगा, बट दोनों की प्रैक्टिस इज इम्पोर्टेंट। ये सारे असाइनमेंट से तो हम बच्चों के साथ देते हैं, उनको करवाते हैं, और इसकी प्रैक्टिस फेसबुक ग्रुप में प्रॉपर वीडियोस आकर लाइव आके करते हैं, और धीरे धीरे ये स्किल इम्प्रूव होता है। कैप्सूल नहीं है सर कि एक बार में इम्प्रूव हो जाएगा, बट नाउ आई एम डिलीवरिंग अ टॉक कि भाई सिंपल आपको एक चीज पता चल जाए कि ऐसे धीरे धीरे इस स्किल को बनाया जा सकता। नाउ वी मूव टू द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें था बॉडी लैंग्वेज वाले पार्ट में, सॉरी एल्बर्ट मेहरबिन की थ्योरी में,
दैट इज वोकल वैरायटी, स्पीड, वॉल्यूम एंड टोन। नो, अब वॉल्यूम पे बात करते हैं। बहुत सारे लोगों का वॉल्यूम हाई होता है, लो होता है और नॉर्मल होता है। नॉर्मल में तो नो इश्यू। अब हाई और लो वाले क्या कर सकते हैं? देखिए, अगर आप की वॉइस लो है और आप तेज वॉइस में बोलेंगे ना, तो आप ज्यादा देर तेज वॉइस में बोल नहीं पाएंगे, वापस स्लो हो जाएंगे। और अगर आपकी वॉइस बहुत तेज है, आप लाउड बोलते हैं, तो वो बाय नेचुरल है ना। आप धीमा बोलते हैं तो नेचुरली धीमा बोलते हैं, और फास्ट बोलते हैं, लाउड बोलते हैं तो आप नेचुरली लाउड बोलते हैं। तो हाउ टू कंट्रोल इट? इफ देयर इज अ माइक, अगर वहां माइक है तो आप क्या कर सकते हो? पहली बार जब आप स्पीच देने जा रहे हो ना, चेक योर माइक वॉल्यूम, कि माइक में कितने पॉइंट पे आपका वॉल्यूम लास्ट बंदे तक जाता है। नॉर्मल 10 पॉइंट पे, 15 पॉइंट पे, 25 पॉइंट पे, 30 पॉइंट पे। लो है तो हाई करवा के, हाई है तो लो करवा के, एक बार सेट करके नंबर पता कर लीजिए, नोट डाउन इट ऑन योर डायरी। अब आप अगली बार कहीं भी स्पीच देने जा रहे हैं ना, बोल दीजिए भाई 25 पे सेट कर दो, आपका वॉइस नॉर्मल हो गया। अगर हाई होगा तो भी नॉर्मल कर लिया आपने, लो होगा तो भी नॉर्मल कर लिया, और नॉर्मल है तो नॉर्मल है ही। जो चीज गॉड ने फिट करके भेजी है, अगर आप उसको प्रैक्टिस के थ्रू कम करने या ज्यादा करने की कोशिश करेंगे, कुछ देर तो कर लेंगे, लेकिन उसके बाद फिर वही आ जाएगा। बट माइक के थ्रू हो सकता। नाउ वी मूव, ये तो हुआ वॉल्यूम की बात। अब बात करते हैं वॉल्यूम के बाद टोन। हाउ टू प्रैक्टिस द टोन? मैं आपको एक सिंपल सा ट्रिक देता हूँ। कल इंडिया पाकिस्तान का मैच है, इसको आप हैप्पीनेस में बोलिए। कैसे बोलेंगे? वाओ, कल इंडिया पाकिस्तान का मैच है यार। सैडनेस में बोलो, यार फिर इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है, क्यों हो रहा है? फियर में बोलिए, ये राम, कल इंडिया पाकिस्तानों का मैच है, कहीं कोई झगड़ा बवाल ना हो जाए। एंगर में बोलिए, क्यों इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है, जब हमारी उनसे नहीं पटती तो। वाओ, कल इंडिया पाकिस्तान का मैच है, आई एम सरप्राइज्ड। सेम सेंटेंस को आप श्रेयो में प्रैक्टिस करिए, आपकी जो टोन है ना, इंप्रूव होगी, पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एनी सेंटेंस इन दीज 6 डिफरेंट इमोशन। लोग बोलते हैं स्टेज पे रोना नहीं चाहिए, लेकिन अगर ऐसा कोई सेंटेंस आपने बोला जिसमें आपकी आंखों में आंसू आ गए, तो इमोशन ट्रांसफर होते हैं फ्रेंड्स, इमोशन ट्रांसफर होते हैं। पब्लिक इमोशन कैच करती है, वर्ड्स कैच नहीं करती। कितने लोगों को, मैं अगर मैं बोलूं हिप्पोपोटामस, कितने लोगों के दिमाग में हिप्पोपोटामस की स्पेलिंग आई, या कितने लोगों के दिमाग में हिप्पोपोटामस का पिक्चर आया? आई एम 100% श्योर सबके दिमाग में पिक्चर आया होगा पहले, बाद में स्पेलिंग आएगी। हमारा ब्रेन पिक्चर से याद करता है। पिक्चर्स मीन्स इमोशंस से जो हमारा फेस बनता है ना, वो पब्लिक फील करती है, उसको कैच करती है, वर्ड्स को कैच नहीं करती। दैट इज इंपॉर्टेंट। ये अलग अलग इमोशंस हैं, अलग अलग वेज हैं, जिससे आप अपनी टोन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ स्पीड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोग बहुत फास्ट फास्ट बोलते हैं या स्लो बोलते हैं। नॉर्मल बोलने वालों के लिए कोई इशू नहीं है। तो एक्चुअल में स्पीड कितनी होनी चाहिए? आप चाहो तो नोट कर लो चेक करने के लिए। 160 to 170 वर्ड इज आइडियल वर्ड पर मिनट। नॉट, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये एल्बर्ट मेरिबियन एंड डिफरेंट रिसर्च कह रही है। हमारा जो ईयर है और जो ब्रेन है, 150-60 शब्द 1 मिनट के हिसाब से स्टोर करने की कैपेबिलिटी रखता है। अगर आप बहुत स्लो हो जाएंगे तो भी ब्रेन एक्सेप्ट नहीं करेगा, बहुत फास्ट हो जाएंगे तो भी ब्रेन स्किप कर देगा। तो अब ये चेक कैसे होगा आपका टोन क्या है, आपकी स्पीड क्या है? तो आपके सबके पास कोई ना कोई बुक होगी, बुक उठाइएगा, घर में नोट कर लीजिए कैसे करना है। बुक उठाइएगा, टाइमर लगाइएगा मोबाइल में 1 मिनट का, स्टार्ट कीजिएगा और नॉर्मल स्पीड में आप पढ़ डालिएगा। जब 1 मिनट खत्म हो, वहां रुक जाइए, काउंट द वर्ड, चेक करिए आप कहाँ पे आते हैं।
उसमें से 15 वर्ड 20 वर्ड बढ़ा दीजिएगा, क्योंकि जब आप बोलते हैं तो थोड़ा स्पीड फास्ट होती है और रीड करते हैं तो स्पीड थोड़ा स्लो होती है। सेकेंड वे है रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। 1 मिनट आप लगातार बोलिए, रिकॉर्डिंग 1 मिनट की कट कीजिए, उसमें काउंट कीजिए कितने वर्ड आपने बोले। थोड़ा ये टिपिकल हो जाता है, इसलिए बुक वाला ज्यादा इजी होता है। काउंट द वर्ड। अब ये स्पीड हाई वालों को लो कैसे करेंगे, लो वालों को हाई कैसे करेंगे, यानी फास्ट कैसे करेंगे, लेट्स सी। वर्ड पर मिनट आपने निकाल लिया, मान लेता हूं मैं। अब यहाँ पे प्रैक्टिस कैसे होगी, देखिए जिनकी स्पीड स्लो है, आराम से बोलते हैं, उनको क्या जरूरी है मालूम है? उनके लिए जरूरत है जो बीच में वो पॉज ले रहे हैं, पॉज का सारा खेल है। जो पॉज ले रहे हैं ना, उसको धीरे धीरे पॉज के टाइमिंग को कम करना। एकदम से नहीं होगा पर होगा। पॉज के स्पेस को कम करिएगा, ये धीरे धीरे फास्ट हो जाएगी, नॉर्मल में आ जाएगी। और जो बहुत फास्ट बोलते, जल्दी जल्दी बोलते, उनके लिए भी यही पॉज ही दवा है। उनको बीच में कुछ जगहों पे ब्रेक लेने की जरूरत है, 2 सेकंड का, उनकी स्पीड नॉर्मल में आ जाएगी। बट बोल रहा हूं, कोई कैप्सूल नहीं है जो आप एक बार लेंगे और आपसे हो जाएगा। यू नीड टू रिकॉर्ड इट, मॉनिटर इट, देन अगेन रिकॉर्ड एंड अगेन मॉनिटर। हम यही करते हैं बच्चों के साथ, जो हमारे ट्रेनीज होते हैं उनके साथ। कई बार रिकॉर्डिंग होती है, एक दिन में नहीं होती है, एक दिन में 10 से 15 मिनट की ही प्रैक्टिस होती है बस, बट लगातार होती है 3 महीने तक, तब वो चीजें इंप्रूवमेंट दिखता है। और कैसे पता चलता है दिखता है, क्योंकि उनकी पहली रिकॉर्डिंग भी हमारे पास है और 90 दिन के बाद की रिकॉर्डिंग भी हमारे पास है, तो दिखता है कि इंप्रूवमेंट हुआ है, बच्चे को खुद दिखता है कि इंप्रूवमेंट हो रहा है। नाउ वी मूव टू शोल्डर्स। शोल्डर्स डाउनवर्ड नहीं होने चाहिए, सिंपल सी थ्योरी है, अपवर्ड या स्ट्रेट होने चाहिए। उसको भी हम जब कैमरे में रिकॉर्ड करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली ब्रेन को मैसेज जाकर हम उसको सुधार सकते। तो चलिए, एवरीथिंग इज प्रैक्टिस। नाउ वी मूव टू द कंटेंट। कंटेंट इज अ किंग। सर मेरे पास आई थिंक टाइम ओवर हो चुका है, तो मैं यहीं पे वाइंड अप कर दूं। कंटिन्यू यस सर एंड कर दीजिए आप, बस आप कंक्लूडिंग पार्ट ले लीजिए आपका। ओके, नो इशू। अच्छा डायरेक्ट मत क्लोज कर दीजिए, कंक्लूड करके बाद में क्लोज कर दीजिए। ओके कोई बात ओके ओके, क्योंकि बहुत टाइम हो जाएगा तो फिर ऐसा ना हो कि ऑडियंस बोर होने लगे। तो हमें कंटेंट के लिए जो ध्यान देना है वो है 3 डिफरेंट कंटेनर्स में अपने कंटेंट को रख दीजिए। नंबर 1 में रिसर्च, नंबर 2 में ग्लोबल अथॉरिटी, नोट कर सकते हैं। नंबर 1 रिसर्च, आप कुछ रिसर्च बेस्ड डेटा प्रोवाइड कीजिए। 2 में कुछ ग्लोबल अथॉरिटीज के बारे में बात कीजिए, जैसे मैंने आपसे बात की एल्बर्ट मेहरबियन। फिर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, दैट इज योर पर्सनल एक्सपीरियंस। आपके क्या फीलिंग्स है, आपके क्या एक्सपीरियंसेस हैं, उनके बारे में बात कीजिए। लोगों को वो अट्रैक्ट करता है, अटेंशन ग्रैब करता है। और ये चीज पब्लिक को पहले से बता दी कि आप 3 पॉइंट पे बात करने वाले। अब चाहे आप 30 मिनट बात करने वाले हो, एक एक टॉपिक पे 3-3, 4, 5-5, 7-7 मिनट बोलेंगे, आपका 30 मिनट कवर अप हो जाएगा। नो, दैट इज लास्ट। मैं आपसे सिंपल बात करता हूं लास्ट पॉइंट पे, दैट इज अवर एंडिंग, हाउ टू एंड द प्रेजेंटेशन। तो 2 प्रकार की एंडिंग की मैं आपसे बात करूंगा। नंबर 1 इज प्लान्ड या सिग्नेचर एंडिंग। सिग्नेचर एंडिंग मीन्स, फॉर एग्जाम्पल आप कोई वीडियो बना रहे हैं, तो जैसे प्रवीण सर एंड किया करते थे, दिस इज प्रवीण बड़ालकर साइनिंग आउट अंटिल वी मीट अगेन। ये उनका लास्ट सेंटेंस था, इट मीन्स इसके बाद काम खत्म, अब वो कुछ नहीं आगे बोलने वाले। ऐसे ही आप स्टेज पे जाके जब बोलते हैं, तो व्हाट इज योर सिग्नेचर एंडिंग। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला, ओके गुड नाइट फ्रेंड्स, टेक केयर योरसेल्फ, इफ यू वांट टू
कनेक्ट विथ मी, लॉग इन टू माई वेबसाइट, क्लोज। उसके बाद आप स्टेज से चले गए। इट इज नोन एज सिग्नेचर एंडिंग, कि आप यही 3 सेंटेंस या यही 3 लाइनें एंड ऑफ द स्पीच आप बोल के बाहर हो जाएंगे। दूसरी एंडिंग होती है हैंड ओवर द पावर टू द होस्ट। आप होस्ट को बुला लीजिए और उनसे बोलिए कि प्लीज स्टार्ट Q&A। यू डोंट ट्राई टू स्टार्ट Q&A। अगर आपने Q&A स्टार्ट किया, दैट इज वेरी डेंजरस। अगर एक भी क्वेश्चन नहीं उठा तो सोच के देखिए आपकी स्पीच की पूरी बैंड बज गई। इसीलिए आप अपनी पावर, अपनी अथॉरिटी जो है ना, वो होस्ट को दे दीजिए। वो स्टार्ट करेगा क्वेश्चन 9 से। अगर नहीं आएगा क्वेश्चन तो आप किंग नहीं है, अब आप फ्री हो चुके हैं, आप साइड में हो गए। इसका भी एक तोड़, एक रास्ता है जो मैं यहाँ पे नहीं कर पाया, लेकिन ऑन द स्टेज कर लेता हूँ। प्लान्ड एंडिंग। व्हाट इज प्लान्ड एंडिंग? मैंने बिगिनिंग और एंडिंग के क्वेश्चन के 2 बंदे पहले से बैठा दिए। अब मैं बोल रहा हूँ एनी क्वेश्चन, 1 मिनट बाद वो मेरा पहला बंदा उठ जाएगा, क्वेश्चन चालू कर देगा। और जब फर्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा तो फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8 आ जाएंगे। और जब मुझे लग रहा है यार बहुत हो गया, तो मैं बोलूंगा एक मैसेज, दिस इज लास्ट वन। तो मेरा लास्ट वाला बंदा उठेगा, उसके बाद बात खत्म। तो दिस इज द वे टू एंड। और भी बहुत सारे तरीके हैं, बट मैं ये 2 चीजें प्रेफर करता हूं, तो मैंने वो 2 चीजों पे आपसे बात की। तो सर, दिस इज फ्रॉम माय साइड। 1 घंटे में बहुत कम डिलीवर कर पाया, उसके लिए माफी चाहूंगा। 21 दिन का प्लान 1 घंटे में देना थोड़ा डिफिकल्ट तो होता है। Thank you, Dr. Agarwal, sir. Thank you so much for accepting our invitation and delivering your very nice speech. Now, I would like to request the Honorable Dr. Sadashiv Varvate, sir, librarian of my college, to present the vote of thanks for today's session. Dr. Sadashiv Varvate, sir. Thank you, sir. I am Dr. Sadashiv Varvate, sir, presenting the vote of thanks for today's session. Today's session was a very informative, knowledgeable, and interactive by Dr. Rajesh Agarwal, sir. Thank you, sir, for accepting our invitation and giving fruitful guidance to how to presentation of our speech. I am thankful to the chairperson of today's session, Dr. B.R. Vodke Sirji, the principal of our college. I am thankful to the Dr. Vittal Chavan, sir, vice principal of our college. And I am thankful to all my colleagues for attending today's session. I am also thankful to all the dear participants, those who have participated for all the over India. Lastly, I am thankful to all the teachers, those who are listening as on YouTube line. Once again, in the thank you to the one and all present here. Thank you. Thank you so much. Thank you, Dr. Varvate, sir. Thank you so much. Thank you, Rajesh ji. Really, it was very nice session, and it is not conclude all the session within a minute, within an hour, that to how to present our skillfully presentation. Thank you so much. Thank you, sir. Have a nice day. Thank you, and good night to